Good morning, good morning, my dear friends. I hope you all are having a very, very, very good morning. Today, my dear friends, we embark on an amazing journey where we start our CA final exam oriented fast track batch. Absolutely, my dear friends, where there will be 100% coverage along with important Q&As, along with all the amendments and all the additions and deletions that have happened in your new May 24 ICI module. Okay. We begin this journey with a belief and with a vision that we score not less than 75 in indirect tax, right? We start with that vision. Are you all guys done with your articleship? Raise your hands. Lovely. If you all are done with your articleship, even better, guys, because I really want you all to show up every day and do what is supposed to be done, because even you know by now that आज का काम अगर कल छोड़ेंगे तो जो आज मुश्किल लग रहा है कल नामुमकिन लगेगा. ठीक है, तो आई एडवाइज यू ऑल टू कीप अप द मोमेंटम और हर रोज का चीज हर रोज कर लो. हर रोज आपको क्या है, एक टारगेट दिया जाएगा, वो अचीव कर लो एंड दैट्स इट. उतना आईडीटी के लिए टाइम निकाल देना और यही सोच के चलना कि बाई 16th of March यू विल बी डन विथ योर एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स पिट पैट. ठीक है, बस मैं जो बोलूं वो फॉलो करना और फुल सरेंडर मोड में रहना. ठीक है, अगर इतना मेरे को तेरे से मिल जाएगा तो मैं पक्का बोल दूंगा 75 आ गया. लास्ट अटेम्प्ट में ही बहुत सारे बच्चों को 80-85 आया है. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ये चीज हो चुकी है और ये चीज ओके, ये जो आप देख रहे हो ना, ओके, जो पीडीएफ मैंने सेंड की और जो बुक आपको तुरंत मिलेगी, दैट इज योर दैट इज जस्ट योर 75 पेजेस में जीएसटी एंड अराउंड 20 पेजेस में योर कस्टम्स. It's very smartly made, nothing else. There is 100% coverage, but it's just very smartly made. जहाँ पे लास्ट दिन पे आपको सेंटेंसेस में क्या है वक्त नहीं गवाना, आपको डायग्राम्स देख के क्या है फटाफट से चीजों को एनकैप्सुलेट करना है, खाट 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 खाट, राइट, एंड मेक श्योर दैट द एंटायर कॉन्सेप्ट इज एनकैप्सुलेटेड. Also, this attempt I have consciously decided that a lot of time will be given to CA final because I believe that this is something that I wanted to do since inception. This is the very reason that I have also left my previous academy where I was the co-founder, right? कि यार फुर्सत से पढ़ाना है आपको, एकदम अच्छे से पढ़ाना है. What happens is generally when you are in an offline class, you hardly get time to study because most of the times you're just taking lectures or doing some management work. So I'm glad I'm able to take out time and just focus on teaching you guys. And the tribe that we are going to build, the tribe of the people that have taken the admission, I want to be a very close knit tribe where I am also tracking your progress with IDT. So all I would like to say is that I am here to help you, and now it's time that you help yourself. It's already, we are at the fag end of Feb. If you make sure that this is the subject that you have kept at the mercy of me, I make sure that your job is done. Just keep doing what I say. That's it. Respect your word and respect the fact that whatever is to be done gets done. That's it, right? एक कहावत है that 10,000 steps starts with one, right? So let's start walking that one step every day, and soon you will realize that you are goddamn, you're feeling amazing about IDT. The perspective is different. ठीक है, तो ये बिलीफ सिस्टम के साथ, ये जुस्से, ये एंथुजियाज्म के साथ शुरू करते हैं. टू सपोर्ट दिस,
every Saturday, my dear friends, okay, every Saturday. The timings will be mentioned to you on the group. We will have vivas. I also want you to show up on that, right? It won't take more than half an hour. But जो भी उस वीक में हम लोगों ने किया है वो मैं आपको पूछूंगा. And you have to be prepared. And even if you are not prepared, let's say आप कोई दूसरे सब्जेक्ट में क्या है फंस गए हो, still show up. You might be surprised कि यार मुझे कितना अच्छे से चीजें याद है. So the entire journey of this 75 hours is about breaking your belief system that शायद मैं आईडीटी के वजह से फेल हुआ था या शायद मैं आईडीटी में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाया, इसीलिए आज यहाँ पे हूँ. और उसी को हमको ब्रह्मास्त्र बनाना है, जहाँ पे जो ग्रुप 2 है वहाँ पे लेके आना है 75, सो दैट अपने जो दूसरे पेपर है उनमें क्या है 40-40 ला सके, उसका लेवरेज ला सके. ठीक है. और मेरे प्रोत्साहन के लिए मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपने वीडियो भी ऑन करें. दैट विल नॉट हेल्प मी, दैट विल हेल्प यू, बिकॉज दैट विल हेल्प मी see whether you all are able to understand or not through your facial expressions, right? Because that's the only means through which I can understand whether you all have understood or not, right? And that just completely takes my delivery and the way I deliver lectures to another level. So I will genuinely appreciate, okay, especially guys, कि बस अभी कपड़े वपड़े पहन लो बेटा, ओके, और फटाफट से वीडियो ऑन कर लो. ठीक है, चलो फटाफट से, ओके, शुरू करते हैं बेटा. ओके, सिट इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस, मेक श्योर दैट योर स्टांस इज एक्सट्रीमली स्ट्रेट, और प्लीज आप ना धो के आइएगा. द रीजन इट्स केप्ट एट 8:30 इज बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन, सो दैट यू आर नॉट इन अ ड्राउजी मूड, राइट? एंड रात को कोशिश करिए 10-10:30 बजे सो जाए. दिस हैज ट्रिमेंडसली हेल्प्ड मी मेक अ रूटीन, बिकॉज योर बॉडी जस्ट मनूवर्स द वे यू वांट इट टू बी. तो मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ. ठीक है, मेरी आंख ऐसे ही खुल जाती है, एंड देन आई हिट द जिम एंड देन आई कम हियर. तो थोड़ा क्या अपनी ये सीए की जर्नी को मीनिंग दीजिए, ऐसे ही पागल की तरह पढ़िए मत, और अपने आप को टाइम लिमिट दीजिए कि इतने टाइम ही पढ़ूंगा. बिकॉज ओनली व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी विल यू डू समथिंग. इफ यू डोंट कीप सच टाइम लिमिट्स, यू विल ऑलवेज फील दैट द टाइम इज अनलिमिटेड, एंड दैट इज अ वेरी फॉल्स इल्यूजन टू हैव, एंड यू नो दैट. सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम. ठीक है, कि मैं 10 बजे सो जाऊंगा, 5 बजे उड़ जाऊंगा. ओके, अभी आगे की क्या है बेटा, जो भी मेंटरिंग टिप्स है या क्या है, ऐसी सब टिप्स है, उसके लिए लेक्चर नहीं, उसके लिए यूट्यूब वीडियो आ जाएगा, वो सब बात में. ठीक है. ओके दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. ओके, आज का लेक्चर बेसिक्स से स्ट्रक्चर होगा मुझे, और बेसिक्स फाइनल सीए का बेसिक्स बात कर रहा हूँ, इंटर का तो ठीक है, फाइनल सीए का बेसिक जो शायद आपने पढ़ा ना हो, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट I also aim to complete charging section, that is our chapter number 1, right? So let's directly hit that, okay, because it's equally important कि आप ये बेसिक समझ लें. अच्छा, वन गुड न्यूज इज दैट इंट्रोडक्शन चैप्टर जो था, राइट, वो अभी नहीं है आपको गाइस. ओके, तो आर्टिकल 2, इफ यू रिमेंबर, 246A, 269A, 279 है, जहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है, right? List 1, list 2, list 3, right? Taxes which are subsumed or not subsumed in GST. Finally institute has realized कि यार ये लोग कुछ तो क्या है करके आए होंगे इंटर सीए में. ऐसा नहीं कि सब लोग ने आईडीटी छोड़ दिया हो. तो दे हैव कंसिडर्ड कि यार वो बेहतर है कि वो इंटर के लिए ही हो जाए. तो इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका उड़ा ही दिया है उन लोगों ने पूरा. तो आर वी गोइंग टू डू दैट? एब्सोल्युटली नॉट. व्हाई विल वी वेस्ट टाइम डूइंग दैट? लेट्स हैव अ वेरी प्रिसाइज डिस्कशन ऑन व्हाट वी आर सपोज टू डू. ठीक है, तो अभी मैं सीधा क्या बेसिक्स पे जाने वाला हूं, विच विल टेक अराउंड 1 hour, एंड आफ्टर दैट वी विल डायरेक्टली हिट टू द चार्जिंग सेक्शन. एंड इफ यू ऑल आर गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ ग्रास्पिंग एंड इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि आपको मेरी पेज सही लग रही है, तो मे बी वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद आरसीएम. लेट्स सी हाउ फार वी गो, राइट? लेट्स हियर इट गाइज, लेट्स हियर इट.
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ द फैक्ट कि भैया आज जीएसटी आया क्यों, राइट? वाई जीएसटी? द रीजन ऑफ दिस दैट आई वांट टू एक्सप्लेन इज बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स आपको काम लगेंगे आईजीएसटी एक्ट में और रिफंड में, ठीक है? वहां मैं लेकर आऊंगा जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जीरो रेटेड सप्लाई का और आईटीसी में भी, राइट? तो आज बहुत जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ जाए। शायद आपको पता ही ना है कि आज क्यों जीएसटी डुअल जीएसटी मॉडल पे है, क्यों जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, राइट? ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले तो जीएसटी आया क्यों, क्यों वो डुअल जीएसटी मॉडल में ही आया, और क्यों वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ही है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है, राइट? लेट्स क्विकली माय डियर फ्रेंड्स डू इट, ओके? डज एनीवन बाय द वे नो इट? रेज योर हैंड्स। Okay, great. And even if you know, sometimes you will understand most of y'all are doing it for the second time or third time, I don't know. So there will be times जहाँ पे आपको लगेगा यार स्लो है, जहाँ पे आपको लगेगा फास्ट है, ओके? स्पेशली जिनको स्लो लग रहा है ना, जस्ट बी विथ इट, लिसन. समटाइम्स यू माइट लिसन to something that you haven't heard because amendments are in charging section also, RCM also, in almost every chapter there is an amendment. Don't miss out on that. राइट? डन. चलो फटाफट से लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स विथ वाई जीएसटी. वाई जीएसटी वाज अराइव्ड, ओके? तो दोस्तों बात हो रही है 1990s की, जहां पे कॉन्सेप्ट आया था सेल्स टैक्स का, राइट? सेल्स टैक्स में माय डियर फ्रेंड्स सिंपल था. किसका था ये टैक्सेबल इवेंट? वेरी सिंपल. आज अगर मैं सेल ऑफ गुड्स करता हूं विद इन द स्टेट, यानी मैं मुंबई से क्या है बेच रहा हूं गुड्स, किसको? पलक को, इन पुणे. तो आज सिंपल सी बात है, मैं लगा दूंगा 100 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स 10%, 10 रुपया 110. शी विल पे मी 110, आई विल कीप विद माई सेल्फ 100 और 10 मैं दे दूंगा स्टेट गवर्नमेंट को. बेसिकली सेल्स टैक्स पूर्ण जन्म था किसका? वैट का. इज दैट वेरी क्लियर? ओके, फटाफट से सेल्स टैक्स कैसे हो रहा था, क्विकली लेट्स गो थ्रू इट. मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. तो कॉस्ट क्या है मैन्युफैक्चरर का? 1000 रुपया. प्रॉफिट है 20%, दैट अमाउंट्स टू व्हाट? 200. ये है 1200 सेलिंग प्राइस, ओके? प्लस लग जाएगा क्या? सेल्स टैक्स. क्यों? क्योंकि आप गुना कर रहे हो. किस चीज का गुना कर रहे हो आप? सेल्स करने का, और इसीलिए लग रहा है सेल्स टैक्स, ओके? 120, 1320, ओके? नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस 1320, ओके? माय डियर फ्रेंड्स, दिस 1320 इज cost to wholesaler, okay? It is cost to wholesaler, my dear friends, okay? wholesaler उसका मतलब मैन्युफैक्चरर को 1320 दे देगा. मैन्युफैक्चरर अपने पास रखेगा कितना? 1200. और 120 जो है माय डियर फ्रेंड्स वो मैन्युफैक्चरर दे देगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है? होप दैट मेक सेंस, ओके? अच्छा, होलसेलर का कॉस्ट कितना हो गया? 1320. प्रॉफिट कितना है 20% के हिसाब से? 264. सेलिंग प्राइस कितना है? 1584. सेल्स टैक्स अगेन कम्स आउट टू बी 10%, 158. कीप द चेंज. कॉस्ट टू रिटेलर इज 1742. रिटेलर अभी क्या करेगा? 1742 दे देगा किसको? होलसेलर को. होलसेलर अपने पास रखेगा 1584 और 158 होलसेलर दे देगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ओके? नेक्स्ट, रिटेलर का कॉस्ट कितना है? 1742. प्रॉफिट है 20% अगेन, कितना हो जाएगा? 348. सेलिंग प्राइस इज 1900, ओके? अगेन सेल्स टैक्स एट द रेट 10% अमाउंट्स टू 190. एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, I'm so sorry. How much is this? 2090. My bad. अभी क्या फिगर्स रट्टा हुआ होते हैं बेटा तो भूल भूल हो ही जाएगी, ओके? तो 2090 इज द फिगर, राइट? 209 सेल्स टैक्स, कॉस्ट टू कंज्यूमर
इज 2299। तो कंज्यूमर 2299 दे देगा किसको? रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा? अपने पास रखेगा 209 0 एंड 209 दे देगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, तो यर द बिगेस्ट टेक अवे इज 3 थिंग्स। पहला, कॉस्ट टू कंज्यूमर इज ओके 2299, माय बैड, ठीक है। ये फाइनल कॉस्ट टू कंज्यूमर है दोस्तों, ठीक है। बेसिकली 2300 रुपया अगर गिने हम लोग, ओके, तो ये कॉस्ट टू कंज्यूमर है, ठीक है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के खाते में कितना जा रहा है पैसा? तो 120 प्लस 158 प्लस 209 487, ठीक है, परफेक्ट। अब सब सही तो चल रहा है सर, इसमें इशू क्या है? इशू एक ही है, शायद आपने इंटर में सीखा होगा ऑलरेडी। एक ही, क्या है बेटा? फटाफट से लिखो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स पे हाथ रखने का ही अपना इंटरैक्शन करोगे मेरे साथ तो ही क्या है, बढ़ोगे आगे और मजा आएगा आपको भी मुझे भी। ओके, सो बी विथ मी फटाफट से। सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा था? एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्तों। अगर आप गौर से देखेंगे 1320 को, तो उसके अंदर ऑलरेडी है 120 और इसे बोलते हैं कैस्केडिंग। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट। क्योंकि यही 120 प्रॉफिट आके सेलिंग प्राइस में आता है और सेलिंग प्राइस पे वापस लग जाता है क्या दोस्तों? सेल्स टैक्स, राइट। वही 1742 अगर आप खोल के देखें तो वो मिश्रण है 158 का और यहाँ पे 120 भी आता है, क्योंकि वही क्या है 1584 के अंदर 120 छुपा था। तो यहाँ पे डू यू रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स कि 120 और 158 यानी कि ऑलमोस्ट ओके 278 यानी ऑलमोस्ट 300 रुपया मैं बोलूँ तो भैया इसके अंदर सिर्फ टैक्स छुपा हुआ है और उस पर आगे जाके वापस क्या है, वही सेलिंग प्राइस का पार्ट बनेगा और सिंपल सी बात है उस पर वापस लग जाएगा सेल्स टैक्स। तो दोस्तों डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे क्या? कैस्केडिंग। ओके, कैस्केडिंग मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। अभी इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है बेटा, क्योंकि एक चीज याद रखना, ये पूरे चेन में यू नो हु इज द स्मार्टेस्ट पर्सन? द स्मार्टेस्ट पर्सन इज द कंज्यूमर मीट। कंज्यूमर इज द स्मार्टेस्ट पर्सन, स्पेशली इफ इज गुजराती, मारवाड़ी या तो फिर बेटा सिंधी। वो माँ कसम क्या करे, या कच्ची भी है, कच्ची लोग भी माँ कसम गजब लोग होते हैं। ओके, तो these people started now you know spreading awareness कि यार यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट से क्यों खरीदना भाई, मैं तो इंटरनेशनल मार्केट से खरीदूं। माँ कसम कस्टम्स देने के बाद भी पता चल रहा है क्या कि मेरा कॉस्ट जो आ रहा है वो 2300 नहीं आ रहा है, वो आ रहा है 2000। तो आज क्या हुआ, एक को पता चला एक ही बार, दूसरे, एंड द रिपल इफेक्ट वाज क्रिएटेड एंड द डिमांड ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल मार्केट्स। तो आज रोजगार किसको मिल रहा है? फैक्ट्रियां किसकी चल रही है? रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, किसको धंधा मिल रहा है? चाइना को। और हिंदी चीनी भाई भाई ये सिर्फ नाम के लिए है बेटा, कट्टर दुश्मन है हम लोग। पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है, समझा? यस। तो दोस्तों फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बड़ा पॉलिसी चेंज लाया कि यार अगर वापस हमको क्या है पूरा का पूरा बिजनेस डिमांड लेके आना है इंडिया के अंदर, तो वी हैव टू डू सम वेरी सिग्निफिकेंट टैक्सेशन चेंजेस, स्पेशली इन इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर निर्णय लिया कि आज से जितने भी स्टेट्स हैं वो सेल्स टैक्स फॉलो ना करके वैट फॉलो करेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। तभी भी बहुत हुला हुला हुआ था, बहुत हुला, एंड यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स थ्रोन बाय state government because there was a big hit that the state government had to take to implement VAT. Why? Because in VAT there was no cascading, and since there is no cascading, there is no tax on tax, there is just tax on value addition. सेल्स टैक्स में क्या है? टैक्स पे टैक्स, सेल्स पे टैक्स। पर यहां पे क्या है टैक्स? यहां पे टैक्स है ऑन वैल्यू एडिशन। तो यहां पे कैस्केडिंग नहीं होने वाला था। तो कैस्केडिंग नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, क्लियरली अब फिर वैसे वैल्यू एडिशन पे एक लोअर वैल्यू पे क्या है गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, ना कि एक हायर वैल्यू पे। पहले क्या होता था, आपका जो वैल्यू एडिशन उस पे तो मिलता ही था, साथ साथ में उसके अंदर टैक्स भी छुपा हुआ था, उस पे था टैक्स। तो ऑब्वियसली हायर वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप टैक्स का परसेंटेज,
तो गवर्नमेंट को ज्यादा ही पैसा मिलेगा। पर अब गेम चेंज होने वाला था। तो गेम चेंज होने वाला था, इसीलिए क्या है, काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को लगा कि यार अभी तो हम लोग अपना खर्चे कैसे मैनेज करेंगे, स्पेशली समवन एज बिग एज यूपी और बिहार। You know what is the population of UP, beta? 22 crores. You know the population of Pakistan? 19 crores. We have a country within a country. Are you getting it? Yes. No wonder why we are considering Yogi ji after Modi ji. Okay. Because बेटा एक बंदे को तो हम कभी नहीं आने देंगे, और आप जानते हैं। ओके, पप्पू कांट डांस साला, हाउ कैन ही बिकम प्राइम मिनिस्टर साला। आर यू गेटिंग इट? यस। चलिए दोस्तों, लेट द पॉलिटिकल ओपिनियंस बी असाइड। ओके, तो आज दोस्तों केस हो रहा है कि भाई तभी एक्चुअली वेरी फोरसाइटेड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अस हु देन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला वैट लाओ भाई, वैल्यू एडेड टैक्स। और वैल्यू एडेड टैक्स किस प्रिंसिपल पे चल रहा है? एक ही प्रिंसिपल पे चल रहा है पलक, और वो है क्या? जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना वैट भरोगे, जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना वैट भरोगे। ओके, तो आज सिंपल सी बात है दोस्तों, फटाफट से देख लीजिए। मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। कॉस्ट क्या है इसका? 1000 प्लस प्रॉफिट क्या है? 20%, 200, 1200 सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्लस वैट है एट द रेट 10%, that amounts to 1200, 120, 1320. Now here I will use the nomenclature price to wholesaler, ठीक है, price to wholesaler, ठीक है। Now do you realize यहाँ पे nomenclature मैंने cost रखा था और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ क्या? प्राइस। क्यों ऐसा? बिकॉज होलसेलर माय डियर फ्रेंड्स, ओके, 1320 जब देगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर तो क्या करेगा? 1200 अपने पास रखेगा, और यही मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को 120 दे देगा, ठीक है। सर तो फर्क क्या हुआ सर? यहां पे भी वो 120 ही दे रहा था, राइट, और यहां पे भी 120 दे रहा है, तो सर नामकरण ही हुआ है सिर्फ, यहां पे तो कुछ सब्सटेंस में चेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म में चेंज हुआ है। नहीं पगले, तो फोकस कर इस बात को कि सेल्स टैक्स में दिक्कत भी इस पॉइंट से आ रही थी, यहां से होलसेलर के जंक्चर से कैस्केडिंग हो रहा था। तो चेंज भी तेरे को वहीं से दिखेगा, तो चेंज तेरे को अब दिखेगा यहां से, ये जंक्चर से। तो यहां पे दोस्तों होलसेलर, सिंपल सी बात है, उसको आदत लगी थी सेल्स टैक्स की, उसको नहीं पता वैट में क्या करना है, तो वो तो क्या है, इनोसेंटली क्या है, ओके, सिंपल सी बात थी कि भैया मेरे जेब से गया है कितना? 1320, तो मेरा कॉस्ट कितना है? 1320, ऐसा लिख दिया। पर फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना बेटा, ओके, ऐसा नहीं करना, वरना बेटा तेरे को पाकिस्तान भेज देंगे। ओके, यस, तू है बेटा एंटी नेशन। तो होलसेलर ने बोला क्यों भाई, मेरे जेब से गया है 1320 का कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट तो 1320 ही लिखू ना, का उठी क्या लिखू यार? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं बेटा, तू ये नहीं लिख सकता, तू लिखेगा 1200। होलसेलर ने बोला तो 1200 क्यों पर? अरे मेरे जेब से 1320 गया तो मैं 1200 क्यों लिखूंगा कॉस्ट? प्लीज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। तो गवर्नमेंट ने बोला बिकॉज 120 तू कस्टमर से वसूल नहीं करेगा तेरे, मैं तुझे रीइंबर्स करूंगा। तो मैंने बोला तू करेगा? उसने बोला हाँ मैं करूँ। तो बस गवर्नमेंट ने जब से ये आश्वासन दिया, एश्योरेंस दिया है, होलसेलर ने क्या बोला, देख भाई मेरे को है ना, मेरे जेब से 1320 गए, अब मेरे को 1320 वापस चाहिए मिनिमम। ओके, अभी मैं वो कस्टमर से लूं या कस्टमर तुझसे, दोनों से लूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा 1320 वापस चाहिए जो जेब से गया था। आई यू ऑल विथ मी इन दैट? यस, ओके। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने बोल दिया 1200 क्या 120 मैं दूंगा, तू इसीलिए प्लीज 1200 लिख दे तेरा कॉस्ट इंस्टेड ऑफ 1320। होलसेलर ने मान ली, ओके। और गवर्नमेंट ने ये भी जस्टिफिकेशन दिया कि तू सुन के मैं क्यों 1200 नहीं लिखवा, 1320 नहीं लिखवा रहा और 1200 लिखवा रहा, क्यों? वाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज सबके जड़ की एक ही फसाद थी, क्या?
कि जब जब आप कॉस्ट में ऐड करते हो टैक्स, खत्म, एंड गेम हो गया अपना। क्योंकि कॉस्ट ही आपका अगर अडल्ट्रेटेड है, उसमें ही बेटा मिश्रण है किसका, टैक्स का, तो फिर आगे तो फिर चीजें बढ़ने ही वाली है, कैस्केडिंग होने ही वाला है भाई। क्योंकि वही कॉस्ट पे प्रॉफिट लगेगा, सेलिंग प्राइस आएगा, और वही सेलिंग प्राइस पे लगेगा वैट। और वही हो रहा था लास्ट टाइम कि गवर्नमेंट है ना, जब होलसेलर कॉस्ट अपना लिख रहा था तब गवर्नमेंट ने इंटरवीन ही नहीं किया। गवर्नमेंट ने बोला जो करना है कर, ओके। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, ये बोल के कि भैया 1200 ही लिखना है, 1320 नहीं लिखना, 120 मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि अगर लिख दिया तो हो जाएगा कैस्केडिंग, और वही मुझे क्या करना है, अवॉइड करवाना है, ठीक है। तो होलसेलर मान गया, प्रॉफिट यहाँ पे 20%, 240, राइट। सेलिंग प्राइस अमाउंट्स टू 1440, VAT here is 10%, makes it to 144. Again, price to retailer 1584. Retailer will give 1584 to wholesaler. Now understand, wholesaler has collected both these amounts from retailer. Do you all get that? Yes, this is selling price. This is clearly the right of wholesaler to keep with himself. ये अपने पास ही रखेगा। 144 जब वो देने जा रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो उसकी अमानत तो है ही नहीं, वो तो वैट है, वो तो क्या है, गवर्नमेंट की अनामत, इट्स अ ब्लडी टैक्स। तो चुपचाप सेल्स टैक्स की तरह देने गया। लास्ट टाइम कैसे देने गया था, 158 गाइस, ओके। और गवर्नमेंट ने ले लिया था कि मैंने 158 क्या है सेल्स टैक्स के रूप में कलेक्ट किया है, ये लो 158, राइट। तो वैसे ही वो इस बार 144 देने गया कि ये लो, मैन्युफैक्चरर सॉरी होलसेलर ने बोला स्टेट गवर्नमेंट को ये लो 144। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं पगले, तू मुझे इस बार 144 नहीं देगा। क्यों? बिकॉज समझ ये बात को कि मैंने भी तुझे वादा किया था कि मैं तुझे 120 रीइंबर्स करूंगा जब तू यहाँ पे 1320 का कॉस्ट लिखने वाला था। और मैंने तुझे रोक के क्या बोला कि तू 1320 नहीं 1200 लिखेगा, ये आश्वासन पे कि 120 दूंगा, आगे जाके दूंगा। और अब वो मौका और दस्तूर आ चुका है। तो yes, you are supposed to pay me 144 because you have collected that tax from your customer. But don't forget the fact that I am also supposed to give you 120. I will reimburse you that amount of input tax जो तेरे जेब से गया है while you have purchased goods from manufacturer. तो अब बेटा हम लोग बड़े हो गए, अडल्ट हो गए हैं बेटा, सीए फाइनल में तो ऐसा चेक चेक तो खेलेंगे नहीं क्या ले 144 और आधे 120। सीधा बोलेंगे चुपचाप 144 जो तूने रिटेलर से कलेक्ट किया है उसमें से तू अपने पास रखेगा 120 और मुझे सिर्फ दे दे क्या 24। ओके, तो डू यू रियलाइज कि 1440 तो वो अपने पास रखेगा ही बिकॉज वो सेलिंग प्राइस है, बट 144 में से भी दोस्तों 120 वो अपने पास रखेगा, 24 दे देगा गवर्नमेंट को। डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? यस। और ये ओके याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, उसने रिटेलर से ही कलेक्ट किया, वो कोई अपने जेब से नहीं दे रहा, ठीक है। ओके परफेक्ट। एंड द लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन रिटेलर का कॉस्ट वो भी असमंजस में था, वो भी लिख दिया यहाँ पे 1584। गवर्नमेंट ने उसे वापस मना किया कि नहीं मत कर ये चीज, ये गलती मत कर भाई, इंस्टेड ऑफ 1584 प्लीज राइट 1440, क्योंकि 144 टैक्स है और वो मैं तुझे कतई नहीं लिखने दूंगा, बिकॉज लिख दिया तो वापस यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा क्या, कैस्केडिंग। ओके, क्या शुरू हो जाएगा हनी, कैस्केडिंग। इज दैट वेरी क्लियर? यस। ओके, तो आज ये है प्रॉफिट है 20%, 288। ओके, सेलिंग प्राइस 1728, वैट 10%, 172। ओके, कीप द चेंज। प्राइस टू कंज्यूमर 1900। ओके, but consumer
1900 दे देगा किसको, रिटेलर को। रिटेलर अपने पास रखेगा 1728 और 172 में से पूरा 172 दे देगा बेटा, रिटेलर पूरा दे देगा स्टेट को नहीं, बिकॉज रिटेलर को भी वादा किया गया था कि यहाँ पे तू 1584 ना लिखने के बजाय 1440 लिख, क्योंकि 144 तुझे वापस दे दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, 172 में से अपने पास रख कितना, 144, और मुझे सिर्फ दे दे कितना, 28। क्यों गवर्नमेंट ने बोला मैन्युफैक्चरर तू रख 120, तू रख 24 और तू 28 ही दे, क्यों ऐसा? बिकॉज अगर आप गौर से देखेंगे बेटा इस कॉन्सेप्ट को, चेहरे को नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट को, तो आप ये समझेंगे कि वी आर क्लियरली अडियरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना वैट भरोगे। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर का वैल्यू एडिशन देखें गौर से दोस्तों, तो कितना हो रहा है बताइए, 1200, बिकॉज उसने आप समझो DMDL OH तो डाला ही होगा, साथ साथ में प्रॉफिट भी उसका वैल्यू एडिशन है, तो 1200 वैल्यू एडिशन किया, उसका 10% कितना होता है, 120। नेक्स्ट, अभी होलसेल और रिटेलर बेटा वो किसकी जात है, वो ट्रेडर की जात है मां कसम। उसका एक ही तरीका है कमाने का, क्या, प्रॉफिट ऐड करो आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसका है 240, इसका है 288, तो 240 का 10% कितना होता है, 288 का कितना होता है। तो डिड यू जस्ट रियलाइज कि अगर मैन्युफैक्चरर के चेन से हम लोग रिटेलर के चेन पे जाए अगर, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन 1200 का हुआ है, 240 का हुआ है, 288 का हुआ, यानी टोटल जो सेलिंग प्राइस कंज्यूमर को रिटेलर ने कोट किया है, या जो सेलिंग प्राइस रिटेलर ने कंज्यूमर को कोट किया है, वो 1728 है। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना है मीत, 1728। तो टोटल वैट भी कितना है यहां पे डिपेंड, 172, ठीक है। अच्छा, वैल्यू एडिशन 1200 का किया था मैन्युफैक्चरर ने, ये किया था होलसेलर ने, ये किया था रिटेलर ने। तो वैसे ही बेटा टैक्स भी तो वैसे ही भरा है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, 120, 24, 28। एंड द ब्यूटी इज कि ये जो भी अमाउंट्स है वो ना मैन्युफैक्चरर, ना होलसेलर, ना रिटेलर किसी ने भी अपने जेब से नहीं निकाला, सब लोगों ने जेब कटवाया है अपने कस्टमर का। फॉर एग्जाम्पल राइट, मैन्युफैक्चरर है तो आज उसका वैट कितना बनता है गवर्नमेंट की तरफ, 120, तो देखो उसने चार्ज कितना किया है होलसेलर को, 1320। तो बेसिकली जो वैट उसे गवर्नमेंट को देना है, क्यों, क्योंकि उसने गुना किया है वैल्यू एडिशन करने का, उसने टैक्सेबल इवेंट सेटिस्फाई किया है, सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, तो उसका लायबिलिटी बनता है गवर्नमेंट की तरफ। वो उसने फाइनेंस करवाया किससे, होलसेलर से। तो डू यू रियलाइज होलसेलर का जेब कट गया 120 से। अब होलसेलर चिंतित है, क्या 120 तो हमारा कस्टमर पास थी लेवाना छे, ये 120 तो मेरे को मेरे कस्टमर से लेके आना है, पर साथ साथ में मैं भी तो गुनाह कर रहा हूं वैल्यू एडिशन करने का और आगे जाके बेचने का, और उसका 240 का वैल्यू एडिशन होता है, 24 रुपया उसको भी तो देना है गवर्नमेंट को। तो आज उसको दो चीज का वरी है, एक तो जो जेब कटवा के आया है वो 120 से, क्योंकि उसने वो फाइनेंस किया था किसका, मैन्युफैक्चरर का वैट, और उसका खुद का वैट लायबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट 24, बिकॉज उसने गुनाह किया वैल्यू एडिशन करने का। तो ये दोनों अमाउंट वो कहां से लेगा, अरे अपने कस्टमर से। कैसे, 144 चार्ज करके बेटा, 144 अगर आप चेक करें, 120 एंड 24, तो डिड यू जस्ट रियलाइज मैन्युफैक्चरर ने अपना वैट कहां से फाइनेंस करवाया, होलसेलर। होलसेलर ने अपना और मैन्युफैक्चरर का वैट कहां से फाइनेंस करवाया, रिटेलर। और रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर अभी इस बात का रोना रो रहा है
कि माँ कसम मैं तो क्या है फाइनेंस करके बैठ गया हूँ किसका वैट, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का वैट, क्योंकि मेरे जेब से गया 144 और मैंने बेचने का गुना किया, वैल्यू एडिशन का गुना किया, तो मुझे 288 का 28 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा वैट। तो ये तीनों अमाउंट मैं मेरे कस्टमर से लूंगा, राइट। एक 144 और एक 28, 144 का आगे करे तो 120 और 24। Are you able to gauge that, my dear friends? राइट, कि मैन्युफैक्चरर ने अपना वैट फाइनेंस करवाया होलसेलर से, होलसेलर ने अपना और मैन्युफैक्चरर का वैट फाइनेंस करवाया रिटेलर से, रिटेलर ने अपना, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर तीनों का वैट फाइनेंस करवाया कंज्यूमर से, और कंज्यूमर के नाम में ही है बेटा कंज्यूमर, टैक्स के बोझ तले मर। तो वही बेटा फाइनली फाइनेंस करेगा पूरी वैट चेन का वैट। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, अच्छा फटाफट से बताओ, कॉस्ट टू कंज्यूमर है कितना? 1900। पहले कितना था? 2300, आई एम सो सॉरी, 2300 बराबर। अब कितना है? 1900, विच इज इवन लेसर देन व्हाट आई वाज इंपोर्टिंग फॉर। तो इंपोर्ट मैं कर रहा था कितने में? 2000 में कर रहा। अब तो मेरा डोमेस्टिक प्राइस ही 1900 आ रहा है, तो अब पूरा डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक मार्केट। बस सिर्फ यहाँ पे एक जन को घमासान क्या है बेटा, यहाँ पे नुकसान होगा, वो है गवर्नमेंट। क्योंकि डू यू रियलाइज गवर्नमेंट के खाते में अभी सिर्फ आएगा 172, जो पहला था 487, तो उसका आधे से भी ज्यादा का रेवेन्यू कम हो गया। तो बहुत रोना रोया था उसने, बहुत रोना रोया था, क्योंकि आप समझो आपका रेवेन्यू ही सीधा क्या है, आधा हो गया है, जो सबसे मेजर सोर्स है वैट। और ये सेम चीज हुआ बेटा जीएसटी, क्योंकि जो बचा कुचा कैस्केडिंग वैट, एक्साइज और क्या सर्विस टैक्स और सीएसटी में हो रहा था, वो भी अभी नहीं होगा जीएसटी में। तो इसीलिए रोना धोना हो रहा था। पर मोदी जी बीइंग एन अमेजिंग डिप्लोमैट, he and his mainly I feel Amit Shah has a very main role to play in this, because he was the one to convince all the states. It's not, understand, GST is a all India level tax, it's one nation one tax. तो सब स्टेट्स को क्या कॉन्फिडेंस में लाना था कि भाई करो। ये तो अच्छा था कि क्या है कि भाई अपने 29 स्टेट्स थे, तो उसमें से क्या है 19-20 स्टेट में तो बीजेपी की ही सरकार थी। So that's great when your states and when your center both are having one government. That is great, and that is also deadly if that sarkar is in the wrong hands. Do you, I don't know if you know this, a fun fact, but have you heard Modi ji saying that is bar 400 par? Have you all heard him saying now? Now his target is 400 plus. You know why? A quick reason for that, just an amazing thought. Do you know that to amend the constitution, you need 2/3 majority? So 545 member है, तो that 2/3 comes out to 363. So he wants BJP alone to have 370 and NDA, which is a coalition of all other parties like Shiv Sena है, ये है वो है, regional parties होती है ना, to exceed 400. Now understand, if he gets that, he can amend the constitution of India. So you have very big decisions coming in, like, you know, why people are talking about UCC and CA, because of all of this, because he's going to do that. And it's all coming our way. So very big decisions. And the issue with Modi ji is that he has no successors to take care of. So there is no insecurity of, you know, your successors, your sons or your daughters, you know, coming to the throne. And when you are someone like that, you are fearless and you take decisions. Khat. So that is, you know, that is what I was like, wow, crazy. Okay. So guys, all I want to tell you is that this is how tremendously the demand shifted from international markets to domestic. ठीक है, चल अभी सर आप बोल रहे थे कि इशू आ रहा है सर कुछ वैट में भी, सर्विस टैक्स में भी, एक्साइज में भी, राइट? सर इशू क्या है सर? कैस्केडिंग तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? नहीं बेटा,
Okay, there were immense deficiencies in previous tax laws. Now understand this very clearly, because the reason I'm making you understand this, the reason I'm taking you through this is because in IGST Act, especially when we do place of supply, this will be of great help. और तुझे ये अगर समझ में आ गया ना, तो IGST एक्ट में जो प्लेस ऑफ सप्लाईज है, याद है सेक्शन 10, 11, 12, 13, वो ऐसे मस्के की तरह याद रह जाएगा. लाइक ऐसा हो जाएगा कि तू पढ़ा देगा किसी को, बिकॉज तुझे जुबानी याद रहेगा, तुझे रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा. ओके, वेयर एक्चुअली देर आर मोर देन 30 सेक्शंस इन दैट, राइट? सो लेट्स डू दिस. देख, आज 3 जन को प्रॉब्लम था: ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर. ठीक है, तो लेट्स सी इनमें किसको क्या प्रॉब्लम था और किसको जरा भी प्रॉब्लम नहीं था. लेट्स सी. ओके, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा क्या है आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, इन केस यू ऑल डिडंट नो, बिकॉज यू ऑल आर जेनजीज, तो यू ऑल माइट नॉट नो दिस, यू ऑल एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग. आ जाओ. ओके. ओके, क्लियरली, विच इज वाई व्हेन आई क्रैक जोक्स ऑफ कभी खुशी गम और कुछ कुछ होता है और दिल चाहता है, यू ऑल लाइक सर आप किस जमाने में पैदा हुए. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. फटाफट से, वैट जो है वो कब लगता है? when there is sale of goods within the state. ठीक है. दूसरा, सर्विस टैक्स कब लगता है? when there is provision of service. और एक्साइज ड्यूटी कब लगता है? एक्साइज ड्यूटी है बेटा, ये एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं है. मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स. ठीक है, ये इसके टैक्सेबल इवेंट्स है. ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए. और ये टैक्स जाता किस गवर्नमेंट को है? तो वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट को. सर्विस टैक्स सीजी, एक्साइज भी सीजी, बिकॉज ये दोनों लिस्ट 1 की आइटम है और ये लिस्ट 2 की आइटम है. ओके, ठीक है. चलो फटाफट से अभी आ जाओ. आज अगर मैं ट्रेडर हूं, ठीक है, तो मेरा काम क्या है? सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट. तो मैं चार्ज क्या करूंगा? वैट. और वो वैट कलेक्ट करके मैं दूंगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एमएसजी के साथ. ओके, तो आज हो क्या रहा है? सिंपल. ओके, ये चीज वही है जो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सुन लेना, क्योंकि आगे इसके बाद नया कॉन्सेप्ट होगा. ओके, तो पहले मैं स्टैंडर्ड दिखा देता हूं, फिर डाइवर्जेंस दिखा रहा हूं. तो अगर मैंने विद इन द स्टेट क्या किया है? परचेज. ठीक है, कितने का? 1 लाख रुपीस. अभी विद इन द स्टेट किया है तो यार मैं मुंबई में हूं, मैंने पुणे से खरीदा है, तो वो भी वैट ही लगाएगा ना मुझे, राइट? 10,000. और ट्रेडर आगे जाके सेल करता है विद इन द स्टेट, 1.5 lakhs. वैट 10% है, 15,000. ठीक है. नाउ डू यू रियलाइज दैट ये जो आपके जेब से 10,000 गया है, वो आपने जिससे भी खरीदा होगा, जिस भी ट्रेडर से, उसने वो 1,10,000 में से 1 लाख अपने पास रखा होगा और 10,000 किसको दिया होगा? किसको दिया होगा? टाइप इन द चैट बॉक्स. सीजी या एमएसजी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? करेक्ट. टू बी वेरी प्रिसाइज, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. और ये जो 15,000 है वो भी मैंने कस्टमर से क्या है? कलेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ वैट. तो ये भी मैं लायबल हूं टू गिव टुवर्ड्स whom? अगेन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट. तो डू यू रियलाइज कि मुझे 15,000 देना है एमएसजी को और 10,000 लेना है एमएसजी से ही है. डज दैट मेक सेंस? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, ओके, इनपुट टैक्स
का आपको क्रेडिट मिलता है. सो इनपुट टैक्स इज द रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड आउटपुट टैक्स इज पेएबल टू द गवर्नमेंट, राइट. बिकॉज इनपुट टैक्स में गवर्नमेंट आपको ये आश्वासन देता है कि तू कॉस्ट 1,10,000 नहीं लिखेगा, 10,000 मैं तुझे दूंगा. और जब तू बेचता है, तू टैक्स किसी रूप में कलेक्ट करता है कस्टमर से, और वो तेरी अमानत नहीं है. तो विच इज वाई इट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी विच यू आर पेएबल टू गवर्नमेंट. डज दैट मेक सेंस? तो आउटपुट टैक्स देना है, इनपुट टैक्स लेना है. आउटपुट टैक्स देना है, इनपुट टैक्स लेना है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस, ओके. तो ये है लेना गवर्नमेंट से, और ये है देना. तो जब देना और लेना एक ही गवर्नमेंट के साथ होता है तो आपको आईटीसी मिल जाता है. समझा? तो क्या करूंगा मैं? मेरे जेब से गया 10, मेरे जेब में आया 15, अपने पास रखूंगा 10 और गवर्नमेंट को दे दूंगा 5, राइट. तो आउटपुट टैक्स कितना है मेरा? 15,000. आईटीसी है कितना मेरा? 10,000. 5,000 कैश बैंक. ओके. डू यू ऑल्सो रियलाइज कि मैंने खरीदा था कितने में? 1. मैंने बेचा कितना में? 1,50. तो मैंने वैल्यू एडिशन कितना किया था? 50. 50 का 10% कितना होता है? 5. इज दिस वेरी क्लियर गाइस? ठीक है, ओके. तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये ट्रेडर अपनी कॉस्ट शीट में कॉस्ट का लिखेगा डायरेक्ट मटेरियल का? 1,00,000 लिखेगा या 1,10,000 लिखेगा? टाइप इन द चैट बॉक्स. परफेक्ट. क्लियर है बॉस? ठीक है. और उस पे उसने प्रॉफिट मारा होगा 50%, दैट इज 50,000, and that is why the selling price is 1,50,000. Is there any cascading happening here? Absolutely no. ठीक है, बिकॉज मेरे कॉस्ट में बदबू ही नहीं है बेटा. किसकी? वैट की. ठीक है, चलो फटाफट से. पर अभी दूसरा सिनेरियो. यही ट्रेडर जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, वो कल उठ के सर्विस लेता है. तो वो सर्विस प्रोवाइडर उसे क्या चार्ज करेगा? सर्विस टैक्स, राइट. ले सकता है ना सर्विस, क्लीनिंग सर्विस या अकाउंटिंग सर्विस या कोई भी है. तो सर्विस टैक्स चार्ज कर दिया उसने. तो डू यू रियलाइज कि सर्विस टैक्स उसने चार्ज किया होगा, चलो 10,000, जो बाय द वे गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को. कल उठ के वो तो ट्रेडर है बेटा, तो वो तो चार्ज करेगा क्या? वैट, जो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को. तो डू यू रियलाइज कि आज फॉर एग्जांपल ये 10 है और आप यहाँ पे आप समझो 16,500, ऐसा पकड़ के चलो एक अमाउंट. तो क्या ऐसा होगा इस बार कि जेब से गया 10, जेब में आया 16,500, अपने पास रखूंगा 10 और गवर्नमेंट को दे दूंगा 6,500? क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि ये 10,000 का जब क्रेडिट में मांगने जाऊंगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास, आप समझो लायबिलिटी किसको चुकाना है? महाराष्ट्र को. अरे क्योंकि वैट कलेक्ट करके पे करना है ना मुझे, तो लायबिलिटी तो इसी का है. क्योंकि मैं ट्रेडर हूं तो मेरी लायबिलिटी वैट की होगी, बिकॉज मैं तो वैट ही चार्ज करता हूं. तो आज वही वैट का लायबिलिटी कम करने के लिए मैं एमएसजी को बोला कि भैया अच्छा ये भी सेम ही होगा ना, 16,500 माइनस 10,000 से 6,500 आपके कैश बैंक मैंने डिपॉजिट कर दिया. वो बोला क्या 10,000 किस बात का रिड्यूस कर रहे गाउठी? 10,000 तूने मेरे जेब में डाला है क्या? क्या तूने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जेब में डाला है क्या? तो जो पैसा मेरे पास जमा हुआ ही नहीं, मैं तुझे उसका रिइंबर्समेंट किस बात का दूं? डू यू रियलाइज यहां पे वो पैसा 10,000 जो था वो जमा हुआ था महाराष्ट्र स्टेट के पास. डू यू ऑल्सो रियलाइज कि आज अगर T2 था तो मैंने T1 से परचेस किया होगा, तो T1 ने 0 से 1,00,000 का क्या वैल्यू एडिशन किया? मैंने 1,00,000 से 1,50,000 का. तो इसने 1,00,000 पे वैट भरा है गवर्नमेंट को और इसने 50,000 पे 5. तो डू यू रियलाइज पूरा वैल्यू एडिशन जो महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है
वो है 1,50,000, जिसका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को मिला है 15,000। प्रीवियस एग्जाम्पल। यस। तो इस केस में डू यू रियलाइज दैट वो 10,000 तो चला ही गया है किसके पास? सेंटर के पास। तो जो मेरे पास पैसा जमा ही नहीं हुआ है उसका रीइंबर्समेंट मैं कैसे दूं किसी को? तो स्टेट ने, एमएसजी ने बोल दिया नहीं मिलेगा आईटीसी। तो मैं सेंटर के पास गया, सेंटर प्लीज दे दो ना। बोले क्या दे दो? तू ट्रेडर है, तेरी जाट ट्रेडर की है, तेरी लाइबिलिटी वैट की आती है। तो जब भी तू टैक्स कलेक्ट करता है वैट के रूप में, तू देने किसको जाता है? स्टेट को। तो स्टेट के पास मांग आईटीसी, मेरे पास क्यों मांग रहा है भाई? मैंने रजिस्टर्ड तू स्टेट के साथ है, वैट लाइबिलिटी तेरी देनी है टुवर्ड स्टेट, पैसा तू मुझे मांगने आ रहा है? चल भाग, निकल यहां से। तो सेंटर ने भी हाथ खड़े कर दिए, नहीं दूंगा कुछ भी, नहीं दूंगा, जा निकल, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है। तो आज सीजी ने भी ना कर दिया, एमएसजी ने भी ना कर दिया, तो मुझे पता चल गया क्या कि मुझे नहीं मिलेगा आईटीसी, बिकॉज मैं जिस स्टेट के साथ रजिस्टर हूं, लेट मी ऑल्सो मेक दिस स्टेटमेंट बेटर, मैं जिस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड, पैसा अगर उसके जेब में नहीं जाता इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स तो मुझे रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैं रजिस्टर्ड हूं किस स्टेट के साथ? एमएसजी। जेब से पैसा एमएसजी को गया है, नहीं गया है, तो नहीं मिलेगा आईटीसी। इज दिस वेरी क्लियर? तो अब मुझे बताइए फटाफट से, यशस्वी जी, कॉस्ट क्या होगा इसका? 1,00,000 होगा या 1,10,000 होगा? टेक्स्ट टाइप कीजिए। करेक्ट, 1,10,000, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है आईटीसी। तो डू यू रियलाइज कॉस्ट मेरा 1,10,000 है। डू यू ऑल्सो रियलाइज कि इसी पे क्या है, प्रॉफिट आएगा 50%, 55,000, 1,65,000 सेलिंग प्राइस, और वही 1,65,000 सेलिंग प्राइस जो है मेरा, उस पे लग रहा है वैट 16,500। तो डू यू रियलाइज कि यहां पे लग रहा है वैट ऑन सर्विस टैक्स, वैट ऑन सर्विस टैक्स। वाई? because this 10,000 is nothing else but service tax, जिस पे आगे जाके लग रहा है क्या? वैट। और ये 1,65,000 में 10,000 क्या था? सर्विस टैक्स। तो क्या डबल टैक्सेशन हो रहा है यहाँ पे? यस। क्या टैक्स पे टैक्स लग रहा है यहाँ पे? यस। डिड यू रियलाइज देयर इज अ डेफिशिएंसी? यस। And I will not mince my words by saying that if the same thing, my dear friends, happens to a trader when he purchases from a manufacturer, because manufacturer will end up charging him what? Excise. And excise goes to whom? CG. And you are registered with whom? State. So again, is the money, is your input tax getting deposited with the government that you are registered with? No. तेरे जेब से जो पैसा जा रहा है, तेरे जेब से जो पैसा जा रहा है वो एमएसजी को नहीं जा रहा, वो जा रहा है सीजी को। वहां पे सर्विस टैक्स जा रहा था, यहाँ पे एक्साइज जा रहा, पर जा रहा है कोई और ही भलती गवर्नमेंट को जिसके साथ तू रजिस्टर्ड नहीं है, तो तेरे को नहीं मिलेगा आईटीसी। तो डू यू रियलाइज यहां पे जब कॉस्ट लिखा जाएगा 1,10,000, तो ये 10,000 क्या होगा? एक्साइज। तो यहां पे क्या लग जाएगा फिर आगे जाके? वैट ऑन एक्साइज। तो यहां पे भी होगा कैस्केडिंग। गॉट इट? तो पहले वैट ऑन सर्विस टैक्स और फिर बाद में वैट ऑन एक्साइज। फिर सर्विस प्रोवाइडर की अगर बात करें तो देखो, सर्विस प्रोवाइडर किसके साथ रजिस्टर्ड होगा हमेशा? सीजी।
राइट। तो आज सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो देखो, सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है सीजी के साथ। अब समझो आप, या तो वो सर्विस ले रहा है किसी से, या तो कोई मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद रहा है। यहां पे लग जाएगा एक्साइज और यहां पे लग जाएगा सर्विस टैक्स। यू रियलाइज ये दोनों सीजी को ही जा रहे हैं। तो आपको, आपने जेब से फॉर एग्जांपल 10,000 डाला, वो सीजी को ही गया। आगे जाके आप सर्विस टैक्स चार्ज करोगे अपने कस्टमर्स को, वो भी किसको जाएगा? करेक्ट, क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही किसके साथ हो? सीजी। तो डू यू रियलाइज दोस्तों कि यहां पे एज अ सर्विस प्रोवाइडर मुझे एक्साइज का भी मिलेगा, एटीसी और सर्विस टैक्स का भी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ ये ट्रैक कर रहा हूं कि मेरे जेब से जो पैसा गया है वो मैं जिस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हूं वो उसके साथ गया है कि नहीं। गॉट इट? गया है। ओके, और इसीलिए मुझे इसका मिल भी जाएगा 80, बिकॉज आई एम registered with CG and input tax in the form of service tax or excise is also going to CG. समझा? इसीलिए मुझे मिल जाएगा बिंदास आईटीसी। बट दिक्कत कहाँ आएगी दीपेन? दिक्कत आएगी जब यही सर्विस प्रोवाइडर जो सीजी के साथ रजिस्टर्ड है वो अगर कोई ट्रेडर से माल खरीद रहा है तो वो ट्रेडर क्या चार्ज कर देगा? वैट। और वो वैट चला कहाँ जाएगा पलक? गॉट इट? और आप कहाँ रजिस्टर्ड हो? आप किसके साथ रजिस्टर्ड हो? सीजी। और जेब से पैसा किसको जा रहा है? एमएसजी। नहीं मिलेगा एटीसी। क्यों? क्योंकि सीजी बोलेगा हम, तूने मेरे साथ डिपॉजिट नहीं किया, और एमएसजी बोलेगा तू रजिस्टर्ड ही सीजी के साथ है तो जा उसके पास मांग। तो यहां पे मेरा कॉस्ट क्या आ जाएगा? जहां पे 10,000 क्या है, और वही चीज पे लगेगा प्रॉफिट, और वहीं आएगा मेरा सर्विस चार्ज, और उस पे लगेगा सर्विस टैक्स। तो डू यू रियलाइज कि वो सर्विस चार्ज के अंदर, ओके लेट्स से 50% प्रॉफिट है 55,000, तो 1,65,000, तो ये 1,65,000 के अंदर वैट छुपा हुआ है। तो इस बार लग रहा है सर्विस टैक्स ऑन वैट। वैट ऑन सर्विस टैक्स नहीं, सर्विस टैक्स ऑन वैट, क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर के पोजीशन से बात कर रहा हूं, और ऊपर मैं किसकी हैसियत से बात कर रहा था? ट्रेडर की। समझा? तो ये नॉमेनक्लेचर जरूरी था। तो डिड यू रियलाइज के सर्विस प्रोवाइडर के केस में भी क्या है, कहीं ना कहीं कैस्केडिंग हो रहा था जब वो माल खरीदेगा ट्रेडर से। ट्रेडर के केस में तो 2 बार हो रहा था, जब वो माल खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और सर्विस लेता है सर्विस प्रोवाइडर से। क्योंकि ट्रेडर के केस में रजिस्टर्ड विद एसजी, जेब से जा रहा है पैसा टू सीजी। सर्विस प्रोवाइडर के केस में रजिस्टर्ड विद सीजी, जेब से पैसा जा रहा है टू एसजी, स्पेशली जब वो वैट का आउटफ्लो होता है। तो अगेन अगेन सेम प्रिंसिपल इज द सेम। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट और जेब से पैसा किसी और को जा रहा है, नहीं मिलेगा एटीसी। कॉस्ट का फॉर्म पर है, और जहां पे कॉस्ट आया सिंपल कैस्केडिंग होना ही होना। डज दैट मेक सेंस गाइस? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अब मैं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की क्या है टेस्ट करने वाला हूं। आप बस ये चीज को बराबर से देख लेना, सो दैट आपको लाइफ में ऐसा ना हो मौका मिले
मैंने बताया नहीं था सर. Just check these taxes, check the taxable events, and check which government is it going to before I ask the following question. Just be very well thorough with this. Nothing rocket science, just go through it properly. Okay, and keep it in front of you. The $1,000,000 question is that if I am a manufacturer, will I be registered with CG or SG? Central government or state government? The concepts are in front of you. Just think a little, just think about that entire process. Okay. Listen. मैन्युफैक्चरर क्या करता? क्लॉथ से शर्ट बनाता. डज दैट प्रोसेस एंड देयर? फिर क्या पलक वो शर्ट खुद ही पहन लेगा? हाँ, खुद ही पहन लेगा. क्या करेगा फिर? क्या करेगा वो अनीशा? वो बेचेगा. और जब वो बेचेगा तो क्या ट्रिगर हो जाएगा? फैट. समझा गाउठी? यस. ओके. तो कीप दैट इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स, कीप दैट इन माइंड वेरी वेल कि जब बात आ रही है मैन्युफैक्चरर की, ठीक है, वो दो टाइप का गुना करता है, वो दो टाइप का टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर करता है माय डियर फ्रेंड्स. पहला बनाना और फिर बेचना. तो पहला क्या है? बनाना. फिर है बेचना. समझ? तो बनाना, सॉरी, जब वो बना रहा है तब वो क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर कर रहा है तो एक्साइज ड्यूटी. और जब वो बेच रहा है तब वो क्या कर रहा है? वैट. ठीक है. तो आज एक्साइज ड्यूटी किसको जाता है? सीजी को. और वैट किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है. चल अभी फटाफट से मुझे बता दे कि अगर वो मटेरियल खरीद रहा है और लेबर ले रहा है, डायरेक्ट लेबर का सर्विस फ्रॉम अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तो अगर वो डीएम ले रहा है 100 रुपए का और उस पर ऑब्वियसली वो मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, ओके, आई एम कंसिडरिंग दैट, राइट, तो वो बंदा भी लगा देगा एक्साइज और वैट. ओके, एक्साइज फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज, वैट फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज. और डीएल में ऑब्वियसली वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा तो वो 100 रुपए का है तो लगा देगा सर्विस टैक्स, लेट्स से 10 रुपये. ठीक है. अब वो जब फिनिश गुड्स बेचेगा 500 का तो वो लगा देगा एक्साइज ड्यूटी 80 रुपए का. वैट लगा देगा वो फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए का. एडहॉक फिगर्स है, ये कहीं से आ नहीं रहे, बस मेरे को मन से लिखे मैंने. ओके. अब मेरा तेरे से एक ही दरखास्त है, ये बता कि इसका अगर मुझे कॉस्ट शीट बनाना है तो तू मुझे बताएगा कि डीएम में क्या लिखूं और डीएल में क्या. फटाफट से ये बता दो. चलो, राइट इन द चैट बॉक्स कि मेरा डीएम का कॉस्ट क्या आएगा, डीएल का कॉस्ट क्या आएगा. राइट. डीएम मेरे जेब से गया है पैसा 140, यहाँ पे मेरे जेब से पैसा गया है 110. ठीक है. तो एट नो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डीएम तो ऐसा कुछ मत बोल देना आंसर गाउठी कि 170 180, अरे खर्चा ही हुआ है 140 का, नॉनसेंस. और डीएल तू मेरे को 110 के ऊपर का मत बताना प्लीज. ठीक है. तेरे जेब से गया ही 110 है भाई, उसके ऊपर कैसे बता सकता है? ठीक है, बता. और मैंने जिस हिसाब से वो कॉन्सेप्ट समझाया ना, उसको ही मद्देनजर रखते हुए, वो कॉन्सेप्ट को ट्रैकिंग करते हुए कि किस कौन सा पैसा किस गवर्नमेंट को गया है, आप किसके साथ रजिस्टर्ड हो, वो देख के बताना. ऐसी बस लिख मत देना माँ कसम. ओके. है अपने पास टाइम बहुत है बेटा. गुड वन हनी. आई थिंक
आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट द आंसर्स. दैट्स करेक्ट. बेटा ये किसको गया है? सीजी को. ये किसको गया है? एमएसजी को. ये किसको गया है? सीजी को. करेक्ट. ये किसको जा रहा है? ये मुझे पे किसको करना है? सीजी को. ये किसको पे करना है? एसजी को. करेक्ट. एमएसजी लिख देता हूं. तो डू यू रियलाइज कि सीजी को पे करना है 80, पर जेब से ऑलरेडी पे कितना कर दिया है? इनपुट टैक्स कितना है जेब से? 10 और 30. तो डिड यू रियलाइज कि मेरे जेब से गया है कितना? 40. मेरे जेब में आया है कितना? 80. तो जेब से गया 40, जेब में आया 80. 80 में से रखूंगा 40 और गवर्नमेंट को दे दूंगा 40. तो ये 40 में रीइंबर्समेंट ले पाया कि नहीं? यस. क्योंकि ये पैसा देना किसको है? सीजी को. क्या मैं रजिस्टर्ड हूं सीजी के साथ? यस. क्या देना और लेना सीजी के साथ है? यस. तो ये कट जाएगा भाई, क्योंकि इसका रीइंबर्समेंट मिल गया मुझे. इसका आईटीसी मिल गया. बट व्हेन आई टॉक अबाउट 30, राइट, ये 30 की अगर मैं बात करूं, तो ये देना किसको है? एमएसजी को देना है. और जेब से एमएसजी को गया कितना? 10. तो जेब से गया 10, जेब में आया 30, अपने पास रखूंगा 10, गवर्नमेंट को दूंगा 20. किस गवर्नमेंट को? एमएसडी को. क्या रजिस्टर्ड हो एमएसडी के साथ? यस. तो ये भी चला गया. कॉस्ट रह क्या गया मेरा? अब मुझे हनी जी एक बात बताइए कि इसमें क्या कोई भी प्रकार का कैस्केडिंग हो रहा है क्या? There is no cascading. Not a single ounce of cascading. एक फूटी कौड़ी का कैस्केडिंग नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने शेयर कॉस्ट लिखा है डीएल और डीएम का विदाउट एनी टैक्सेस. ना उसके अंदर एक्साइज है, ना सर्विस टैक्स है, ना वैट है. तो डिड यू रियलाइज दैट ऑल द टैक्सेस आर कमिंग इनटू प्ले हियर, but not a single tax is written in the cost? Why? Because manufacturer is registered with both the governments. तो हिसाब किताब भी हो रहा है विथ बोथ द गवर्नमेंट्स. और एक ही प्रिंसिपल समझाया था आपको कि आप जिस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, जेब से पैसा उसको जा रहा है तो मिल जाएगा आईटीसी. क्योंकि इनएडवर्टेंटली कल उठ के लायबिलिटी भी तो आपका उसी गवर्नमेंट की तरफ जाएगा जिसके साथ आप रजिस्टर्ड हो. पर क्या ऐसा ट्रेडर के साथ हो रहा है? क्या ऐसा सर्विस प्रोवाइडर के साथ हो रहा है? नहीं. क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ सीजी के साथ रजिस्टर्ड है, ट्रेडर सिर्फ एसजी के साथ रजिस्टर्ड है. तो दिक्कत आएगी जब जेब से किसी और गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है. आर यू गेटिंग इट? ये केस. इसीलिए जरूरी था दैट जीएसटी जब आए तब वो डुअल जीएसटी मॉडल के रूप में ही आए, सो दैट ये बचा खुचा जो क्या है कैस्केडिंग है वो भी निकल जाए. बिकॉज अब सर्विस प्रोवाइडर को बोला जाएगा तू सिर्फ सीजी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा लल्ला, तू एसजी के साथ भी रजिस्टर्ड. और ट्रेडर को बोला जाएगा तू सिर्फ एसजी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा, तू सीजी के साथ भी रजिस्टर्ड होगा. आर यू गेटिंग इट? यस. तो अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, ट्रेडर हो, तीन ही तरीके से तो काम कर सकते हो आप, राइट? तीन ही स्ट्रक्चर में काम कर सकते हो आप. ये तीनों के तीनों सीजे के साथ भी रजिस्टर्ड होंगे और एसजी के साथ भी रजिस्टर्ड होंगे. और इसके लिए आज से कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर ट्रेडर से कुछ खरीदना चाहता है तो ट्रेडर क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी. ओके. અને આ સર્વિસ પ્રોવાઇડર આગળ શું ચાર્જ કરશે બેટા? સીજીએસટી, एसजीएसटी. डू यू गेट दैट? तो आज इधर जेब खाली हुआ अगर 1 लाख से आगे वो चार्ज कर रहा है 3 लाख, तो क्या बोलेंगे अपन? जेब से गया 1, जेब में आया 3, अपने पास रखेंगे 1, गवर्नमेंट को दे देंगे 2, सीजीएसटी.
सेम 2 दे देंगे SGST। गेटिंग इट गाइस? ये सिनेरियो समझे? ये रीजन के वजह से आया है क्या? डुअल GST मोड। ये एक्चुअल रीजन है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ऑब्वियसली हम लोगों ने CG और SG के जो एक्सक्लूसिव टैक्सेस थे वो सब छीन लिए थे। जैसे CG के हम लोगों ने छीन लिया क्या? एक्साइज छीन लिया, सर्विस टैक्स छीन लिया, CST छीन लिया, एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने स्टेट का वैट छीन लिया है, लॉटरी है, लग्जरी है, ये सब छीन लिया है। तो भी नया टैक्स जब आएगा तब दोनों को देना पड़ेगा ना, वरना अलाउ कैसे करेंगे वो लोग? तो वो तो है ही, पर मेन रीजन ये है ITC, इस पे पूरा गेम है, समझा? और अगर ये समझ गया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपको जुबानी हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, समझा? इसीलिए मैं प्लेस ऑफ सप्लाई तुरंत लेने वाला। आफ्टर चार्जिंग सेक्शन एंड RCM आई विल डायरेक्टली गो टू प्लेस ऑफ सप्लाई, सो दैट आपको याद रहे वो कॉन्सेप्ट। तो या तो परसों के आगे तरसों तब ले लूंगा, ठीक है? डन है, ओके। तो बस ये कॉन्सेप्ट है ना, एकदम मुझे चाहिए था कि ढांचा तू ले, तेरा ढांचे में घुस जाए, तो यार आगे तू मुझे कोई फालतू क्वेश्चन करे ही नहीं जिसके लिए मेरे को बड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़े तेरे को, ठीक है? ये इसके लिए था, ठीक है? तो आपको ये पता चल गया है क्यों GST आया, आपको ये पता चल गया है डुअल GST मॉडल क्या है और वो क्यों आया। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि वाई GST में वी हैव चोजन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। Why this and why not origin based tax? तो क्या था ये कि हमको यहां से ट्रांजिशन लेकर यहां पे जाना पड़ा, क्या ऐसी मजबूरियां थी, वो जरूरी है, ओके? तो उसके लिए ओके मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपको एक नया टैक्स, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सेंट्रल सेल्स टैक्स। इज दैट वेरी क्लियर? यस, ओके। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स का एक बड़ा गेम ये था कि पहले लेवी CG करता था और कलेक्शन भी CG ही करता था, क्योंकि ये ठहरा लिस्ट 1 का आइटम, यूनियन लिस्ट, राइट? पर फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या है, बहुत रोना धोना किया, बोला कि यार ये क्या है, तू सब टैक्स तो तू ही लेके बैठा है, कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कुछ तो मुझे दे दे भाई, अरे कुछ तो दे दे। तो CG ने बोला ठीक है, ये चला जाएगा SG को, ठीक है? अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि CST का टैक्सेबल इवेंट जो है दोस्तों, वो क्या है? एनीवन रिमेंबर्स? सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, यानी इंटर स्टेट सप्लाई बेसिकली, समझा? तो आज अगर फॉर एग्जांपल सप्लायर है कहां पे? महाराष्ट्र में, और रिसीपेंट फॉर एग्जांपल है हनी जो है गुजरात में, तो मैंने महाराष्ट्र से गुड्स बेचा है गुजरात वाले रिसीपेंट को, सेलिंग प्राइस है कितना? 1 लाख, प्लस CST है कितना? 10%, 10,000, ओके, 1,10,000। अब क्वेश्चन ये है कि ये CST जाएगा किसको, कौन सी स्टेट को जाएगा? महाराष्ट्र या गुजरात? गॉट इट? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना यार। पहला क्वेश्चन क्या था? CG ने SG को दे दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन आएगा इंटर स्टेट है, तो नाउ देयर आर 2 स्टेट गवर्नमेंट इनटू पिक्चर, तो नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट विल गेट दिस टैक्स ऑफ 10,000? तो पहले वी वर फॉलोइंग व्हाट? ओरिजिन बेस्ड टैक्स, वेयर वी वर फोकस्ड ऑन कि जहां पे भी क्या है, गुड्स का ओरिजिनेशन होता है, गुड्स के मूवमेंट का ओरिजिनेशन होता है, उस स्टेट को पैसा जाएगा। तो मूवमेंट ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं महाराष्ट्र से गुजरात, तो महाराष्ट्र। तो आज सप्लायर जो है वो क्या कर देगा? सप्लायर जो है माय डियर फ्रेंड्स,
10,000 अपने अकाउंट में रखेगा। कितना था भाई? हाँ 1 लाख, सॉरी 1 लाख अपने पास रखेगा और 10,000 दे देगा वो जिस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है उसको, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। इज दैट वेरी क्लियर? राइट, बिकॉज मूवमेंट का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र से हुआ, तो सीएसटी का पैसा भी महाराष्ट्र को ही जाएगा। इज दिस क्लियर पलक? यशस्वी? ओके। होप जस्ट लाइक इन क्रिकेट यू ऑल्सो मेक अस प्राउड। पता है कि नहीं यशस्वी आपको? ये जोक नहीं समझा आपको? ये जोक भी नहीं था, कमेंट था एक्चुअली। एक बहुत उभरता हुआ सितारा है यशस्वी, जिसने डबल सेंचुरी मारी है। वेरी फ्यू, वन ऑफ द वेरी फ्यू क्रिकेटर्स हु हैव डन दैट इन इंग्लैंड। सो या पानीपुरी वाले का बेटा है वो। कैन यू बीट दैट? अमेजिंग यार, अमेजिंग स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस। राइट, तो आज ये सिनेरियो था सीएसटी का कि पैसा हमेशा जाएगा किसको? ओरिजिन बेस्ड टैक्स के तहत, ओके, सप्लायर के स्टेट को। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत इतनी ही थी कि अगर तू ये रिसिपेंट के एंगल से देखे, राइट, ये रिसिपेंट भी, ओके, आप समझो, ऐसा समझो कि ये है ए, ये है बी, ठीक है? तो मैं बी के एंगल से देख रहा हूं। बी भी क्या है? ट्रेडर ही है। तो ए ने बी टू बी किया है, बी भी आगे जाके बी टू बी ही कर रहा है, समझा? तो उसने माल खरीदा है, वो माल बेचने के लिए ही क्या आया है भाई? तो उसने माल खरीदा है इंटरस्टेट, उसने परचेज किया है फ्रॉम महाराष्ट्र। वो भैया खुद रजिस्टर्ड है किसके साथ? गुजरात के साथ। और वो आगे जाके इंट्रा स्टेट मारने वाला है, यानी कि वो बेचेगा विद इन गुजरात। तो डू यू रियलाइज वो आगे जाके क्या चार्ज करेगा? वैट। और जेब से उसके गया है सीएसटी, क्योंकि ए ने उसे चार्ज किया होगा सीएसटी। ए ने बी को चार्ज किया सीएसटी, बी आगे सी को चार्ज करेगा क्या? वैट। बिकॉज ए ने किया है इंटर और इसने किया है इंट्रा। अब मुझे आप बताइए सीएसटी किसके साथ जमा हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र या सेंट्रल? अरे पलक, काय करते तुम्ही? समझा? कलेक्शन का पावर किसको दिया है? कौन पैसा रखेगा? सेलर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो कैन एनीवन टेल मी कि बी को सीएसटी का आईटीसी मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है गुजरात के साथ। जेब से पैसा जो गया है सीएसटी के रूप में, क्या गुजरात को गया है? किसको गया? जेब से जो पैसा गया वो किसको गया है? ये एमएसजी को क्या है, जमा कर देगा ये पैसा। बराबर के नहीं? यही तो किया हम लोगों ने यहाँ पे। ए ने किसके पास जमा किया पैसा? बराबर? यस, करेक्ट। अगेन नहीं मिलेगा सीएसटी का आईटीसी। इसीलिए याद रखना, कभी भी अपने क्या है सीनियर से किसको भी पूछना है तो याद रखना वो एक ही बोलेंगे, सीएसटी में आईटीसी नहीं मिलता। और सीएसटी में इसीलिए कॉन्सेप्ट होता था सी फॉर्म का, जहाँ पे आप एक सब्सिडाइज रेट ले सकते हो 2%, अगर आप वो सी फॉर्म देते हो तो। वरना आपको वैट का रेट लग जाएगा वो गुड्स का, ओके, जो 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है। तो ये सिग्निफिकेंटली गवर्नमेंट ने क्या है, कैस्केडिंग का इफेक्ट कम करने के लिए 2% ही लेते थे वो लोग। तो डिड यू रियलाइज कि यहाँ पे भी हो रहा है कैस्केडिंग? अब आप समझो कि ये बी कोई भी हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, और वो क्या है कोई और स्टेट से माल खरीद रहा है, उसका सीएसटी का नहीं मिलेगा उसको आईटीसी।
तो वो उसके कॉस्ट का पार्ट बनेगा बनेगा बनेगा, और आगे जाके या तो एक्साइज लगेगा या तो सर्विस टैक्स लगेगा या तो वैट लगेगा, तो वापस कैस्केडिंग तो होने ही वाला है। बिकॉज अगेन आप जिस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, जेब से पैसा आपकी गवर्नमेंट के पास नहीं गया है, किसी और के पास गया। डज दिस मेक सेंस? राइट? यस। तो हाउ did and why did, my dear friends, we shift from origin based tax to destination based tax? This is the exact reason. Let's see how. अगर आप चेक करोगे कि अभी इन IGST, राइट, कॉमन नॉलेज आई अज्यूम, सप्लायर है, रिसिपेंट है, मीत तो है ना भाई? हाँ। आज की तारीख में अगर ओके, कंसिडरिंग कि आपको कॉन्सेप्ट पता है लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई का, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर है महाराष्ट्र एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है गुजरात, एंड लोकेशन ऑफ रिसिपेंट भी है अगर गुजरात, क्योंकि मैंने गुड्स बेचा है फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, और प्लेस ऑफ सप्लाई में कॉन्सेप्ट है 10(1)(a), whenever there is movement of goods, place of supply will be that place where the movement of goods terminates. तो गुना कहाँ है ऐसा माना जाएगा? गुजरात में। रिसिपेंट भी कहाँ पे है? गुजरात में। तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे? 1,00,000 प्लस IGST 10%, 10,000। रिसिपेंट 1,10,000 दे देगा सप्लायर को, सप्लायर अपने पास रखेगा कितना? अपने पास 10,000। IGST किसको दे देगा वो बताओ? बताओ, मुझे भी पता चले कितना नॉलेज है आपको। टाइप करो चैट बॉक्स में। IGST 10,000 सप्लायर किसके पास जमा करेगा? बता माँ कसम, पता चले कौन है तू। यस CG, एब्सोल्युटली यार। पर क्या ये पैसा पूरा CG को चला जाएगा? नहीं, बिकॉज GST इज अ डुअल GST मॉडल, जहाँ पे थोड़ा जाएगा CG को और थोड़ा जाएगा SG को। करेक्ट? यस। तो उसको देना ही पड़ेगा। ओके, 5,000 अपने पास रखेगा, 5,000 दे देगा स्टेट को। किस स्टेट को? किस स्टेट को? वो दे देगा गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को। तो डू यू रियलाइज दैट रिसिपेंट गुजरात का है, जेब से जो टैक्स गया है उसका इनपुट टैक्स, वो भी किसको गया है? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को गया है। तो इसका उसे मिल जाएगा ITC, क्योंकि वो जिस स्टेट के साथ रजिस्टर्ड है, जेब से पैसा भी उसी को गया है। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? डज दैट मेक सेंस? यस सर। तो डिड यू रियलाइज कि CST में जो पैसा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा होता था, वही GST में गुजरात के पास जमा होता है अभी? क्यों? बिकॉज जिसके जेब से पैसा गया है वो बंदा रिसिपेंट है, तो पैसा भी रिसिपेंट के स्टेट में ही जाना चाहिए। ओनली देन रिसिपेंट विल गेट द ITC। तो गवर्नमेंट ने अपनी पूरी जद्दोजहद लगा दी है इस बात में कि रिसिपेंट को मिले ITC, सो दैट द कॉस्ट ऑफ गुड्स रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली, सो दैट देयर इज नो कैस्केडिंग। तो जो बचा कुचा कैस्केडिंग भी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स में हो रहा था, CST में हो रहा था, वो भी नहीं होगा। तो जब बोलते हो ना अच्छे दिन आए, इसके वजह से अच्छे दिन आए कि द इन्फ्लेशन विल रिलेटिवली डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज नाउ इन द कॉस्ट देयर इज नो टैक्स का अडल्ट्रेशन। आपको टैक्स दिखेगा ही नहीं कॉस्ट में, क्योंकि जो भी उसके जरिए थे सब निकाल फेंके हम लोगों ने। पहले बाय आस्किंग ऑल द major players to get registered with both the governments, and then by changing origin based tax to destination based tax, so that the recipient gets the ITC. Does that make sense? अरे सिर्फ 5 का नहीं मिलेगा रे पगली, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी रजिस्टर्ड है ना वो। अरे रिसिपेंट
सेंट्रल के साथ भी तो रजिस्टर्ड है ना भाई, वो तो सेंटर का तो मिलेगा ही, उसमें क्या क्वेश्चन है, वो तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला था कि यार वो क्या, वो तो समझने वाली बात है कि वो मिलेगा ही हनी, पर मेन गेम है अपना स्टेट का, समझा? यस, ठीक है। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू ऑल गेट दिस, ठीक है। माने ऐसा लगा आपको कि कुछ समझा है आपको, लाइक कि ऐसा या शायद पहले नहीं समझा था या अब समझा है, ऐसा कुछ वैल्यू एडिशन आया है कि नहीं आपको? लिखो बेटा लिखो, वैलिडेशन बेटा सबको ही अच्छा लगता है। ओके, ठीक है। तो ये मेन गेम था, अभी ये समझ में आ गया ना, तो आईजीएसटी एक्ट विल बी पपलू, एब्सोल्युटली विल बी अ केक वॉक, एंड यू विल सी द डिफरेंस व्हाई, एंड दिस विल सिग्निफिकेंटली हेल्प यू इन केस इन योर, माने जब आप आइडियली जब या तो सीए बन के क्या कहीं काम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस, या फिर आप ऑडिट्स के लिए जा रहे हो, तो बहुत मज़ा आएगा आपको, बिकॉज यू विल एग्जैक्टली बी एबल टू टेल टू द क्लाइंट कि भाई ये गलत, इसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा वॉट एवर, या तूने गलत जीएसटी चार्ज किया है, बिकॉज यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस ना, विच मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डोंट नो। आज भी मुझे प्रैक्टिसिंग सीए के कॉल आते हैं कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताना, राइट? तो ये केस है, ठीक है, डन। तो ये था वाई डिड वी गो अहेड विद डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ओके, सो दैट हमको मिल जाए आईटीसी, ओके, परफेक्ट। मुझे बस इतना ही समझाना था, ये क्लियर है पहले? ठीक है, ओके। अब आप एक काम करेंगे, ओके, आप लेंगे एक 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है, 10:10 को आप आ जाएंगे फटाफट से, और फिर हम चालू करेंगे चार्जिंग सेक्शन। आई थिंक हाँ, चार्जिंग सेक्शन आज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने, बेस पहले, ओके, वो कचरा सब साफ कर दिया है, और अब चार्जिंग सेक्शन पे हथौड़ा मारेंगे, तो उस पर हल्ला बोल करेंगे, ठीक है, आ जाओ फटाफट से।